بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کورونا کے حوالے سے۔ فیصل آباد کورونا کی تیسری لہر میں متاثرہ افراد ساؤتھ افریقن وائرس کا شکار ہونے لگے۔ شہریوں کو لگائے جانے والی ویکسین ساؤتھ افریقن وائرس میں 20 سے 30% تک تحفظ فراہم کرتی ہے۔ تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے۔ کورونا ویکسین لگنے کے باوجود شہری وائرس کا شکار ہو رہے ہیں۔ اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد عرفان کا کہنا ہے کہ افریقن وائرس جتنا پھیلتا ہے اتنے ہی لوگوں کو متاثر کرتا ہے۔ وائرس کے آنکھوں اور ٹانگوں پر بڑی تیزی سے تبدیلی آتی ہے۔ کورونا وائرس کی پہلی لہر میں گھر میں موجود 5 میں سے 2 افراد کو وائرس ہوتا تھا، مگر تیسری لہر میں گھر کے تمام افراد وائرس سے متاثر ہو رہے ہیں، کیونکہ افریقن وائرس کی آنکھیں اور ٹانگیں بہت زیادہ کام کرتی ہیں۔ بنیادی طور پر ویکسین حقیقی کرونا وائرس کے لیے بنائی گئی ہے۔ کرونا وائرس کا تعلق ہے تو اس کے ویریئنٹ میں تھوڑا سا عوام کو بتا دوں کہ اس کی ایک سپائک پروٹین ہوتی ہے جو کہ اس کی ٹانگیں اور اس کی آنکھیں ہیں۔ اب جب چینج آتی ہے تو اس کی اسی سپائک پروٹین میں آتی ہے، یعنی اس کی ٹانگوں اور آنکھوں میں چینج آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے۔ عام طور پہ دیکھا ہوگا کہ پچھلی جو فرسٹ ویو تھی اس میں سے اگر ایک فیملی ممبر 5 ہیں تو اس میں سے 2 کو ہوتا تھا، 3 کو نہیں ہوتا تھا، لیکن اب سب کو ہوتا ہے۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ویریئنٹ آ گیا ہے ساؤتھ افریقن ویریئنٹ۔ اس لیے ویکسین شہریوں کو 66 سے 95% تک تحفظ فراہم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ امریکن وائرس کے لیے ویکسین 42 سے 50% تحفظ فراہم کرتی ہے۔ ساؤتھ افریقن وائرس ویکسین 20 سے 30% تحفظ فراہم کرتی ہے۔ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ DHQ ہسپتال کا کہنا ہے کہ کورونا سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہوگا، تاہم ہر شخص کو کورونا ویکسینیشن کروانی چاہیے، کیونکہ بے احتیاطی سے ویکسینیشن کے بعد بھی کورونا کا خدشہ ہے۔ ویکسین اتنی مؤثر نہ ہو جتنا اس کو ہونا چاہیے، تاہم یہ ضرور دیکھا گیا ہے کہ ویکسین لگانے کے باوجود خدا نخواستہ کسی کو اگر کووڈ انفیکشن ہوئی ہے تو اس کے اثرات بہت ہی مائلڈ تھے اور اس نے اس طریقے سے اس شخص کو متاثر نہیں کیا جس طرح روٹین میں لوگ وداؤٹ ویکسینیشن اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ ویکسین لگنے سے پھیپھڑے محفوظ ہوتے ہیں، جس کے باعث آکسیجن اور وینٹیلیٹر کی کم ضرورت پڑتی ہے۔ کیمرامین محمد قمر بوٹا کے ساتھ حسدار حسین، فیصل آباد۔ کورونا کے کاری وار مزید 5 شکار۔ فیصل آباد ڈویژن میں 5 مریض جان کی بازی ہار گئے۔ مزید 289 افراد میں وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ فیصل آباد میں 5 مریض جاں بحق جبکہ 217 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی۔ جھنگ میں 44، ٹوبہ میں 17، چنیوٹ میں 11 افراد میں کورونا کی تشخیص ہوئی۔ کورونا کے کاری وار جاری ہیں، مزید 5 شکار۔ فیصل آباد ڈویژن میں 5 مریض جان کی بازی ہار گئے۔ فیصل آباد ڈویژن میں مزید 289 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ 5 مریض جاں بحق جبکہ 217 افراد میں تصدیق ہوئی۔ جھنگ میں 44، ٹوبہ میں 17، چنیوٹ میں 11 افراد میں کورونا کی تشخیص ہوئی۔ فیصل آباد کے چلڈرن اسپتال میں کورونا وائرس سے متاثرہ پہلا مریض بچہ رپورٹ ہوا۔ متاثرہ بچے کا نام محمد تقی اور عمر 22 دن ہے۔ محمد تقی کو الائڈ اسپتال بچہ وارڈ سے چلڈرن اسپتال منتقل کیا گیا۔ محمد تقی کو بخار ہونے پر الائڈ اسپتال لایا گیا۔ ڈاکٹرز نے کورونا وائرس کے شبے میں ٹیسٹ کروایا، رپورٹ مثبت آئی۔ جی بالکل، فیصل آباد کے چلڈرن ہسپتال میں کورونا وائرس سے متاثرہ پہلا مریض بچہ رپورٹ ہوا ہے۔ متاثرہ بچے کا نام محمد تقی بتایا جا رہا ہے اور عمر 22 دن ہے۔ محمد تقی کو الائڈ ہسپتال بچہ وارڈ سے چلڈرن ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اور مہنگائی کے مارے عوام کو ریلیف ملا تو وہ بھی بہت معمولی۔ حکومت نے پیٹرول 1 روپے 79 پیسے فی لیٹر سستا کر دیا ہے۔ نئی قیمت 108 روپے 56 پیسے ہو گئی ہے۔ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 32 پیسے فی لیٹر کمی کر دی گئی۔ مہنگائی کے مارے عوام کو ریلیف ملا تو وہ بھی بہت معمولی۔ حکومت نے پیٹرول 1 روپے 79 پیسے فی لیٹر مقرر کر دیا۔ آپ کو بتائیں کہ DGFTA ڈاکٹر شہنشاہ فیصل کہتے ہیں فارن فنڈنگ سے 55 ارب روپے کی لاگت سے 3 میگا پروجیکٹ آئندہ 3 سالوں میں مکمل کیے جائیں گے۔ واسا کو پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے بھی واسا کے وسائل میں اضافہ کر رہے ہیں۔ شہری بلوں کی ادائیگی لازمی کریں۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ ڈائریکٹر جنرل FDA ڈاکٹر شہنشاہ فیصل عظیم نے واسا آفس میں اجلاس کی صدارت کی۔ MD واسا جبار انور نے بریفنگ میں بتایا کہ 55 ارب روپے کی خطیر فارن فنڈنگ سے 3 میگا پروجیکٹ آئندہ 3 سالوں میں مکمل کیے جائیں گے۔ ان پروجیکٹس میں ڈنمارک حکومت کے تعاون سے 19 ارب روپے کی مالیت کا 44 ملین گیلن کا
का वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, 16 अरब रुपए का फ्रेंच वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट फेज 2 शामिल है, जिससे 30 मिलियन गैलन पीने का पानी रोजाना फराहम किया जाएगा। जायका का ताउन से 7 अरब रुपए से मशरकी हिस्से को पानी की फराहमी का नेटवर्क, जबकि पंजाब हुकूमत के 5 अरब रुपए से वाटर सप्लाई की बड़ी लाइन्स बिछाई जाएंगी। 24 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट की तंसीब PC1 तैयार है। पानी और सीवरेज के नए कनेक्शंस को रजिस्टर्ड करना भी तरजीहात हैं। इस मौके पर MD का कहना था कि 1.5 लीटर और 500 मिलीलीटर पानी की बोतल जल्द मार्केट में दस्तयाब होगी। डायरेक्टर जनरल FDA ने कहा कि वासा की सर्विसेज बेहतर करने की जरूरत है। उन्होंने वासा के मिनरल वाटर, सीवरेज पाइपलाइन और मैनहोल्स मैन्युफैक्चरिंग के मंसूबों को जबरदस्त करार दिया। रेवेन्यू रिकवरी में मजीद बेहतरी लाने के लिए मौसर और जामे इकदामात उठाने चाहिए। उधर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत काबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट का इजलास हुआ। इजलास में तरक्याती मंसूबों और दीगर प्रोजेक्ट का जायजा लिया गया। मुतादिद बड़े मंसूबों की मंजूरी दी गई। जिला फैसलाबाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जड़ावाला 40 करोड़ रुपए की लागत से अपग्रेड किया जाएगा। पंजाब भर में नए कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और अस्पताल सोलर तवानाई पर मुंतकिल करने की उसूली मंजूरी। नए कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज वगैरह सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने से 45% तक बचत मुमकिन होगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत काबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट का इजलास हुआ। दीगर खबरों में आपको बताते हैं, झंग के रमजान बाजारों में चीनी के स्टॉल्स पर रोजादारों का रश लग गया। खरीदार 2 किलो चीनी के लिए आधे घंटे से जायद का इंतजार करने लगे और आटे के लिए रोजेदार बड़ी तादाद में रमजान बाजारों का रुख कर रहे हैं। चीनी 65 रुपए किलो में दस्तयाब है, लेकिन रोजेदारों को चीनी के हसूल के लिए कई घंटे खार होना पड़ता है। उनका कहना है कि रोजे की हालत में लंबी कतार में लगकर चीनी का हसूल मुश्किल तरीन मरहला है। सर हमें आधा पौना घंटा हो गया, अभी तो ऊपर से बंदे आकर वो चीनी तलक वाले लेकर चले जाते हैं। आधा घंटा बाद बंदा इधर से जा रहा है, चीनी उसको आधे घंटे बाद मुन्ने घंटे बाद मिल रही है। 2 बच्चों के साथ आए हैं हम, बच्चे खड़े हैं, आधे घंटे के साथ अभी चीनी नहीं मिल रही। अभी लंबी कतारों में लगे मर्द खवातीन रोजादार दूर दराज से चीनी के हसूल के लिए आते हैं। उनका कहना है कि अगर अमला बढ़ाया जाए तो उनको बआसानी चीनी मिल सकती है। झंग में 3 मुकामात पर रमजान बाजार लगाए गए हैं, जहां पर कोरोना SOPs पर अमल दरामद न होने से इसके बढ़ने का खदशा पैदा हो गया है। SOPs पर अमल दरामद करवाने का मुतालबा भी किया गया है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, झंग। के रमज़ानुल मुबारक में शहरियों को अशय खुरनोश फराहम करने के लिए फैसलाबाद में रमज़ान बाजार कायम कर दिए गए। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। माह सयाम में शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए सस्ते रमजान बाजार फाल हैं, जहां पर अशिया खुरनोश सस्ते भाव फराहम की जा रही हैं। कमिश्नर साकम मनान ने कलीम शहीद बाजार का दौरा किया। फल, सब्जी, सब्ज मसाला जात, मशरूबात, गोश्त और करियाना से मुतल्लिक अशिया के स्टॉल्स भी देखे। समाजी शख्सियत आज़ाद कासरो ने भी एतमानान का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब के ख़ुसूसी हदायत पर पूरे ज़िले में बाज़ार लगाए गए हैं। फैसलाबाद में 19 बाज़ार हैं और इस वक्त हम यहाँ गुलाम अहमदाबाद के बाज़ार में खड़े हुए हैं। ये हमारा टॉप के बाज़ारों में से है। आपने मुलाहिज़ा कर लिया होगा, माशाल्लाह रंग बिरंगे स्टॉल यहाँ पे लगे हुए हैं और आवाम का बड़े एक खूबसूरत जज्बा नज़र आ रहा है। लोग तरतीब से आ रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। 375 रुपये में यहाँ पे 10 किलो का आटा मिल रहा है। आपने उसका वेट भी करके देख लिया, आपने लोगों को कमेंट्स भी लेके देख लिए। पीपल आर सेटिस्फाई। और जो चीनी का है वो SOPs की वजह से एक थोड़ा रश है। एक लोगों को थोड़ा सा पैनिक हुए हैं कि शायद चीनी हमें जल्दी लेनी चाहिए। चीनी में 20 रुपए किलो की रायत होने के बाद शहरियों का बड़ा रश चीनी के स्टॉल्स पर मौजूद। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली, असिस्टेंट कमिश्नर सैयद अयूब बखारी और उमर मकबूल ने हसीब शहीद कॉलोनी, आयरन मार्केट, छतरी वाली ग्राउंड के बाजारों का दौरा किया। इंतजामात का जायजा लेकर कोरोना SOPs पर अमल दरामद की अपील की। रमज़ान बाजार हैं, इनमें ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं है और गवर्नमेंट की तरफ से जो 4-5 बुनियादी अशिया हैं जिनमें चीनी है, बेसन है, चने की दाल है, लेमन है, इन सब पे जो सब्सिडी दी गई है वो उनका एक तो स्टैंडर्ड भी अच्छा है, ठीक है, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें बिक रही हैं। शुगर के ऊपर कोई रश है लेकिन हमारी सप्लाई बहुत ज़्यादा है और हमने इनके 1 kg के पैकेट्स यहाँ पे बनवा के रखे हुए हैं और इसमें कोई भी शख्स ले सकता है। लेकिन इसके साथ साथ हमने तमाम मार्केट के अंदर भी शुगर सप्लाई कर दी है। डिप्टी कमिश्नर साहब फैसलाबाद मोहम्मद अली साहब ने इस पे बड़ी एफर्ट्स की हैं और हमने तमाम मिलों से जो है अपना कोटा मुकर्रर कराया है और उस कोटे के मुताबिक सिटी के लिए जो है वो 100 मेट्रिक टन जो है चीनी जो है रोज़ाना की बुनियाद पे आ रही है।
एक्स्ट्रा असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत मार्केटिंग मोहम्मद उस्मान ने मॉडल बाजार जंग रोड का दौरा किया। सार्फिन से मसाइल बारे दरियाफ्त किया। दुकानदारों को मेयार और मुकदार पर समझौता न करने की हदायत की। फैसलाबाद में इस वक्त जो है वो 19 बाज़ार जो है वो लगाए गए हैं। हर बाज़ार में एक एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप है और मुख्तलिफ हकाम जो है वो उसको मोनीटर कर रहे हैं। हम भी जो है वो सुबह दोपहर शाम तक जो है वो उसकी वीडियोस देखते हैं, पर्सनली खुद जाके जो है वो क्वालिटी और क्वांटिटी को इंश्योर करने के लिए। अफसरान का कहना था कि रमज़ान बाज़ारों के दौरों का मकसद शहरियों को दी जाने वाली सहूलियात को यकीनी बनाना है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमज़ान मिर्ज़ा, फैसलाबाद। माह रमज़ानुल मुबारक में बिजली की बिला तातुल फराहमी के दावे महज दावे साबित होने लगे। अफजल पार्क, बिस्मिल्लाह कॉलोनी, गट्टी, भाईवाला और जुबैर कॉलोनी में 3 घंटे बिजली बंद रही। बिजली की बंदिश से लोग रोजे की हालत में मुश्किलात से दो चार हुए। रिपोर्ट करेंगे अवैस अली। माह रमज़ानुल मुबारक में बिजली की बिलातातल फराहमी के दावे महज दावे साबित होने लगे हैं। गट्टी फीडर्स पर खराबी के बायस अफजल पार्क, बिस्मिल्लाह कॉलोनी, बाईवाला और जुबैर कॉलोनी में बिजली गायब। लोग रोजे की हालत में मुश्किलात से दो चार हैं। शहरियों का कहना है कि माह सयाम में बार बार बिजली बंद हो रही है। फेस्को होश के नाखुन ले और बिजली की बिलातातल फराहमी को यकीनी बनाया जाए। बिजली तो बंद हो रही है, कभी आंदी है कभी चल जाती है। ਜਦੋਂ ਗਾਹਕ ਆਂਦਾ ਵਾ ਉਦੋਂ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਟੀ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਬੱਤੀ ਤਾਂ ਰਾਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਤੋਂ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਾਹਕ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਤੀ ਭਾਈ बहाल की जाए। माह रमज़ानुल मुबारक में फीडर ट्रिपिंग से बिजली की बंदिश ने फेस्को की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए हैं। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। शहर के अहम मुकामात पर फेस्को बेहंगम तारों को तरतीब देने में नाकाम है। चौक घंटा घर के 8 बाजार हों या मंसूराबाद की मरकजी मार्केट में लटकती तारें, शहरी परेशान हैं। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट। शहर के अहम मकामात पर फेस्को बेहंगम तारों को तरतीब देने में नाकाम हो चुका है। चौक घंटा घर के 8 बाजार हों या मंसूराबाद की मरकजी मार्केट, लटकते तार हर जगह मौजूद हैं। लटकते तारों से शहरी परेशान हैं। शहरियों का कहना है कि फेस्को लटकती तारों के मसाइल हल करे ताकि नाखुशगवार वाकया से बचा जा सके। ये नीचे तारें बिछी हुई हैं, हमारे इधर बच्चे भी हैं, हमने गुजरना होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं इधर। ये तारें अंडरग्राउंड करनी चाहिए, इससे हमारे बच्चे महफूज हो सकते हैं, वरना नहीं हो सकते। इन्होंने चाहिए अंडरग्राउंड करने बाहर कढ़ी जाते हैं। एक दिन आते हैं पुट के चल जाते, तारा बाहर कढ़ के उत्ते तारा इन्नियां लमकियां घर है साडी इत्थे आ, बच्चे लंघते एक बंदा मर भी गया पिछले रोज़ियां च। सिटी 41 से बात करते हुए फेस्को तर्जमान सईद रजा का कहना था कि बिजली की तारों को तरतीब देने के हवाले से काम जारी है, जल्द मसाइल हल होंगे। हमारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अशरफ मलिक साहब की वाज़ेह हदायत पर हमारे जितने भी हैजर्ड्स लोकेशंस थी उनको हमने आइडेंटिफाई किए। प्रॉपर सर्वे करवाने के बाद 50.1 मिलियन जो है वो हम लोग अभी तक स्पेंड कर चुके हैं। और ये जो हैजर्ड्स लोकेशंस आप बता रहे हैं, ये अरसा दराज से हैं जो लोगों ने घर नीचे बना लिए हैं और लाइनें पुरानी हमारी पहले ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी। शहर के अहम मकामात पर लटकती तारें फेस्को की सुस्ती की दास्तान बयान कर रही हैं। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। इंतजामिया की गफलत, ओवरटेक्सिंग में शोरकोट रोड को अधूरा छोड़ दिया गया। जगह जगह पर कई फुट गहरे गड्ढे आवाम के लिए दर्द सर बन गए हैं। रिपोर्ट करेंगे शाहिद महमूद। ओवरटेक्सिंग में शोरकोट रोड मुकम्मल ना हो सका। अवामी नुमाइंदों की जानिब से थोड़ा सा बनाकर अधूरा छोड़ दिया गया। जगह जगह पर कई फीट गड्ढे बन चुके हैं। मुसाफिरों को आमदोरफ्त में शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रोड मुकम्मल ना होने की वजह से गाड़ियों को शदीद नुकसान हो रहा है। रोड बहुत देर तो है ना इस तरह ही है, जे बनाया एक्सीडेंट होने वास्ते उत्थे रोज़ ही आए दिन एक्सीडेंट होंदा पिछली रोड ते, ठीक है। ते ये रोड तो सानू रोज़ कोई ना कोई शैर टुटी होंदी है इत्थे आए दिन, ठीक है। ते ये बनदा ही नहीं रोड, किसी दी सुनदी नहीं है। पिछे बनाया गया सीगा और पिछे रोड उन्ना के टोटा बना के उन्होंने छड़ दिता वा, मेहरबानी बना दिता जाए। शहरियों का कहना है कि बुजुर्ग लोग तो इस रोड पर सफर नहीं कर सकते क्योंकि मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने का खदशा है। 2-3 साल हो गए टूटा हुआ है, असी बहुत तंग वा। साडी दुकान भी नज़दीक आ, परेशानी इन्नी कि असी बीमार हो जाने हैं। बीमार हो के फिर हस्पताल चले जाने, उत्थे 2-3 हज़ार रुपया ला के फिर आ जाने। यह कैफियत है, बराए मेहरबानी है साडा कोई फिक्र करो, साडे नाल तुसी तावन करो, साडा आला काम से अपील है। रोड खराब होने की वजह से दुकानदारों का कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। हुकूमत समेत अवामी नुमाइंदे फौरी तौर पर रोड को मुकम्मल करवाएं। कैमरामैन जवाद मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह।
और फैसलाबाद में गंदम की कटाई शुरू हो गई, मगर हुकूमत की जानिब से कीमतों के हवाले से काश्तकारों को मुतमईन न किया जा सका, जिसकी वजह से किसान रहनुमाओं ने गंदम निजी सेक्टर को फरोख्त करने का इंदिया दे दिया। अब्दुर्रहमान रिपोर्ट करेंगे। काश्तकार रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि पैदावारी लागत बहुत बुलंद हो चुकी है, जिससे गंदम मुनाफा बख्श फसल नहीं रह रही। अगर हुकूमत की जानिब से काश्तकारों को अपनी जिन्स का रेट खुद से तय न करने दिया गया तो इसकी वजह से मसाइल सामने आएंगे। अगर किसान गंदम निजी सेक्टर को फरोख्त करेंगे तो फिर सालाना टारगेट पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। आइंदा बरस पैदावार पर भी मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। गवर्नमेंट को पहले ही कह दिया था कि अगर आप 2000 रुपये मन गंदम की आमदादी कीमत मुकर्रर करेंगे तो हम सोचेंगे गवर्नमेंट को गंदम देनी है। अगर अब गवर्नमेंट ने 1800 रुपये मन पे अड़ी हुई है और डटाई के साथ गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है कि 1800 रुपये से ज़्यादा कीमत हम नहीं देंगे, तो इसलिए हम भी अपनी प्रायोरिटी सेट करेंगे कि अब गवर्नमेंट को हमने गंदम देनी है या हमने प्राइवेट सेक्टर में सेल करनी है, क्योंकि डेफिनेटली जो पैदावारी लागत है वो इतनी बढ़ चुकी है कि हमें वो गंदम जो है 1800 रुपये मन में किसी कीमत काबिल कबूल नहीं है। काश्तकारों की जानिब से दरख्वास्त की जा रही है कि पंजाब हुकूमत मिडल मैन की बजाय बराह रास्त किसानों को ही रिलीफ फराहम करे तो ही बेहतरी आ सकती है। कैमरामैन मोहम्मद अरफान के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। महकमे खुराक झंग ने गंदम खरीदारी मुहिम 2021-22 का आगाज कर दिया। डिप्टी कमिश्नर फयाज मोहल ने बारदाने की तकसीम का इफ्तिताह किया। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर सुफियान आसिफ भी हमरा थे। रिपोर्ट करेंगे मुबशर हसन। गंदम खरीदारी मुहिम के दौरान जिला झंग में काश्तकारों से 26 लाख से जायद बोरियां खरीदी जाएंगी। डिप्टी कमिश्नर ने काश्तकारों में बारदाना तकसीम करते हुए अमले को हदायत की कि काश्तकारों को किसी किस्म की परेशानी का सामना न हो। जिस तरह आप जानते हैं कि वीट प्रोक्योरमेंट जो है वो शुरू हो गई है, आज हमने उसका बाकायदा आगाज़ कर दिया है। 15 अप्रैल हमारी डेडलाइन थी। यहाँ भी 1 या 2 दिन जो है वो वेदर ख़राब है, हमारा वो डिले हो सकता है। हमारा ओवरऑल टारगेट जो है वो 2,62,000 मैट्रिक टन का है। 4 हमारे बेसिकली गोडाउन्स हैं, तो इंशाल्लाह ताला ये टारगेट हमने लास्ट ईयर भी अचीव कर लिया था और इस दफ़ा हमें बड़ी उम्मीद है, चूँकि फसल बहुत अच्छी है तो ये टारगेट बड़े आराम से हम अचीव कर लेंगे। इस मौके पर बताया गया कि जिला भर में 17 खरीदारी मराकज़ कायम किए गए हैं। काश्तकारों से बारदाना के हसूल के लिए ऑनलाइन दरखास्तों की वसूली का अमल जारी है। डीसी ने खरीदारी मराकज़ के इंतजामात बेहतर बनाने की हदायत भी की है। काश्तकारों को यकीन दहानी करवाई गई है कि उनसे गंदम का एक एक दाना खरीदा जाएगा और उन्हें किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं होगा। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, झंग। हुकूमत की जानिब से ज़राअत के फ़रोग में अदम दिलचस्पी। झंग में कलर ज़दा ज़मीनों की बहाली के लिए जिप्सम की फराहमी का प्रोजेक्ट ताहाल शुरू नहीं किया जा सका। हुकूमत की जानिब से ज़राअत के फ़रोग में अदम दिलचस्पी के बायस बंजर आराज़ी बढ़ने लगी, जबकि नमकियात के बायस तबाहशुदा ज़मीनों की बहाली के लिए जिप्सम प्रोजेक्ट भी शुरू नहीं किया जा सका। पंजाब काबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट का इजलास। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज के तहत 14 अरब के मंसूबों की मंजूरी। 14 अरब रुपए से 22 तरक्याती मंसूबे मुकम्मल होंगे। फैसलाबाद की 8 सड़कों के लिए 1 अरब रुपए की मंजूरी दी। पंजाब काबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट का इजलास। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड डेवलपमेंट पैकेज के तहत 14 अरब के मंसूबों की मंजूरी दी गई। फेस्को हेडक्वार्टर में डीसी मोहम्मद अली और फेस्को चीफ अरशद मुनीर वड़ाइच की जानिब से क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत पौधा लगाया गया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। हेडक्वार्टर में डीसी मोहम्मद अली और फेस्को चीफ अरशद मुनीर वड़ाइच ने क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत पौधा लगाया। जीएम एहसान इलाही और DGHR अतर अयूब ने शिरकत की। डीसी मोहम्मद अली का कहना था कि क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत तमाम सरकारी दफातर में पौधे लगाए जा रहे हैं। 5 लाख पौधों का टारगेट जो है वो इस दफ़ा ज़िला इंतज़ामिया ने सेट किया है और उसमें हमारे जितने गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं उनमें हम वक्तन फ़वक्तन बाकायदगी से विज़िट कर रहे हैं। आज यहाँ हमने फेस्को में विज़िट किया है और इनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं उन्होंने हमें ये भी बताया कि इन पौधों के अलावा इन्होंने अपनी कॉलोनी में भी बहुत अच्छी प्लांटेशन की है और ये उस मुहिम में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास एक प्राइवेट इदारे के ताउन से एक नर्सरी जो है वो अपने आखिरी मराहिल में जो 8 लाख पौधे जो है लोगों को फ्री जो है वो प्रोवाइड करेगी। फेस्को चीफ अरशद मुनीर वड़ाइच का कहना था कि फेस्को हेडक्वार्टर के साथ साथ ग्रिड स्टेशन और सरकारी कॉलोनीज में भी पौधे लगाए जा रहे हैं। इससे पहले भी हमने अपनी कॉलोनी में पौधे लगाए हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म का विजन है, तो हमारे जितने भी ग्रिड्स हैं हमने वहाँ पे भी इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं। बाकी कॉलोनीज़ में, बाकी दफातर में
हर दफ्तर में फैस को तकरीबन जो है 2500 से ज़्यादा जो पौधे हैं जो है ना इन्हीं दिनों में जो है ना वो लगाएगा। फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से तमाम सरकारी कॉलोनीज में भी पौधे लगाए जा रहे हैं। कैमरामैन मुजाद अली के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो सब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 41।